Hello, welcome back, kings and queens. This is Pearl Rathod, and this video is going to be very raw. And I'm going to talk about why I feel that some people are just stuck where they were like 2 years ago or 1 year ago, and they just can't move on or seem to improve themselves from anything that life teaches them. So, yeah, I might have been at that place sometimes, and I have now grown from it. And I think that I have improved myself to a level that if I was level 1 during my 8th standard or 9th standard, whatever, I must definitely be on level 5 right now. So yeah, so from my own personal experience I'm going to talk about it, and if you just love listening to opinions and what people have to say about things, stick with me, and I know you will learn something from it, definitely. So one thing that I have realized is that people nowadays love to blame people कि लाइक अगर उसने मेरे साथ ये किया है आई कीप इट विथ माई सेल्फ, बिकॉज साइकोलॉजी में ऐसा होता है ना कि अभी साइकोलॉजी बहुत क्रेजी तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट. सो आई एम लाइक मेरी मम्मी ने मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया था इसलिए आई एम लाइक दिस, मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया था इसलिए आई एम लाइक दिस, पीपल हैव ट्रीटेड मी लाइक दिस वे एंड दैट्स व्हाई आई एम लाइक दिस. एंड इट्स ओके टू नो व्हाट योर रीज़न बिहाइंड द पर्सनैलिटी दैट यू हैव इज इट्स डेफिनेटली ओके. बट अगर तुम्हें कोई चीज़ पता है कि इस रीज़न से तुम ऐसे हो, ठीक है, दैट इज़ फाइन, कम्प्लीटली ओके. बट वो रीज़न तुमको रोक रहा है, दैट पर्सन दैट यू आर राइट नाउ इज हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ द पर्सन दैट यू वॉन्ट टू बी. अगर तुमको ये इंसान बनना है बट तुम यहाँ पे हो एंड कोई भी रीज़न की वजह से, नो मैटर द रीज़न, बट तुम्हें यहाँ पहुँचना है, सो यू कैन नॉट जस्ट से दैट इस रीज़न की वजह से मैं यहाँ पे हूँ एंड जस्ट बी स्टक देयर एंड से कि this is who I am. No, because do you want to be that person? Do you want to be a person who cannot express? Do you want to be a person who overcompensates, who doesn't know their boundary? Do you want to be a person who just blames the external surroundings, right? No, nobody wants to be that person. And do we really want to be in that place where we are blaming others? Because दूसरे लोग तो हमें बचाने नहीं आने वाले हैं, कितना भी आप बोल लो, मैं किसी को भी ब्लेम कर लूँ, दे आर नॉट गोइंग टू कम एंड पिक मी कि अच्छा चल मैंने गलती की थी, मैंने तुझे ऐसे ट्रीट किया था तो चलो मैं तुझे सुधारता हूँ. नहीं, वो नहीं आने वाला है. उन्होंने गलती की थी, उनको पता था उनकी गलती है, फिर भी उन्होंने गलती की थी. तो तुमको क्या लगता है जो जिन लोगों ने तुमको हर्ट किया है वो लोग आके तुम्हें बचाएंगे? सो क्यों ब्लेम कर रहे हो? यू शुडंट ब्लेम एनी वन, राइट? बिकॉज ठीक है, एक्सेप्टिंग दैट बिकॉज ऑफ सम पर्सन दिस इज हैपेंड इज ओके, बट blaming them and thinking कि that will solve your problem is not. You are the one who needs to solve that problem, right? So तुमको खुद को ही उठना पड़ेगा, दूसरों को blame करके कुछ मिलने वाला नहीं है. So pick yourself up and then be at a place कि चलो ठीक है, I am picking myself up and I am at this scenario. How can I improve from this scenario? How can I go from this to this if I want to be here, right? So that is what one needs to have, not blame people and accept that whatever has happened. I cannot go in the past and just tell them कि ए मत करो, रुक जाओ उधर. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. They are still going to do what they're going to do and they most probably will continue to do. You will have to change yourself. Only thing that is in our control is what I'm doing, what I'm feeling, what I'm thinking, what my goals are, what I want to be, where I want to be. And in the constant loop of blaming others, we just forget that everything was in our control. Everybody had the choice. Everybody had the choice of leaving, of loving, of caring, of being in a certain place. And they did still make the choices where जिसकी वजह से वो आज जहाँ पे है वो वहाँ पे आए हैं. So yeah, and that is one of the reasons that I feel that some people are really stuck in the past and blaming people and are not able to improve. Even if they know that they have a very strong potential of improvement, they'll just be stuck there and saying कि यार इसने मेरी potential छीन ली, इसने मेरे साथ ये कर दिया. But you, my babies, my comeback kings and queens, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है. किसी ने तुम्हारे साथ 500 भी बुराइयाँ की होगी, नो कि तुम्हें क्या बनना है. आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि नॉनशलेंट बन जाते हैं, हैविंग दैट एनर्जी ऑफ नॉट केयरिंग एंड एवरीथिंग. बट व्हाट इफ यू आर एन एम्पैथ? व्हाट इफ यू केयर? व्हाट इफ यू गिव अ शिट अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग? बट मेक श्योर कि तुम एक एनलाइटेंड एम्पैथ बनो, कि तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हारी एनर्जी कहाँ पे जा रही है. नो योर एनर्जी. इफ़ योर एनर्जी इज़ हाई, इफ़ योर एनर्जी इज़ अ गिविंग एनर्जी, नो कि हाँ तुम्हारी गिविंग एनर्जी एक्सेप्ट करो. उसमें शाय वाय करने की ज़रूरत नहीं है. अगर तुमको दुनिया बोल रही है कि तुम नॉनशलेंट बनो, इसका मतलब ये थोड़ी कि बन जाओगे भाई तुम नॉनशलेंट. तुम नहीं हो भाई, तुम नहीं हो वैसे. तो
क्यों बनना है तुमको किसी और की तरह? खुद की आइडेंटिटी है ना, खुद की आइडेंटिटी रखो अपने पास, एंड नो दैट देर आर गोइंग टू बी पीपल हु आर गोइंग टू बी लाइक यू, who are going to love you for who you are. So do not change yourself because the world is telling you to change. Do not change yourself. बट नो कि वो चीज़ तुम्हें ग्रो कर रही है, इज़ दैट योर आइडेंटिटी. अब ऐसा भी नहीं कि तुम एकदम गंदे एकदम नेगेटिव इंसान हो, और गंदा नहीं बोलूँगी बट लाइक नेगेटिव इंसान हो और तुमको लग रहा है कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं क्यों चेंज करूँ, मैं दुनिया के लिए पॉजिटिव क्यों करूँ. नहीं, वो तुम्हें बिगाड़ रहा है, तुम्हारे ग्रोथ को रोक रहा है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स को हैम्पर कर रहा है, तुम्हारे बॉन्ड्स को हैम्पर कर रहा है, तुम्हारे करियर को हैम्पर कर रहा है, अ लॉट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. सो अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हैम्पर करिए, तब तो तुम्हें एक्ट करना पड़ेगा ना. तब तुम ये नहीं बोलोगे कि अरे यार ये तो मैं ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा. नहीं, यू कैन नॉट से दैट, राइट. सो व्हेन थिंग्स आर हैम्परिंग द ग्रोथ दैट यू वांट इन योर लाइफ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू चेंज, एंड यू नीड टू नो कि दुनिया अगर बोल रही है तुमको नॉनशलांट बनने से, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इट इज़ there for a reason, because the world is really a cruel place. But if you are naturally an empath, if you're naturally a person who cares about things, you cannot just accept not caring, you cannot just pretend like you do not care. इसमें fake it till it make it का नहीं चलता, because you just bottle up all those feelings and all those emotional things. And अगर तुम accept कर रहे हो that you are a certain kind of a person, तो तुम्हारी emotional maturity कुछ level की है, तभी तुम accept कर पा रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ emotional awareness है, and that's a good thing. You are not trying to fit in a place, you're not trying to change yourself for the world, you are being who you are unapologetically, and such people are rare. तो तुम रहो भाई वैसे. नो नीड टू बी इन दैट जोन कि मुझे दुनिया के लिए बनना है बिकॉज कूल है ये चीज़, तो मुझे ये करनी है. थोड़ा टाइम बाद वो चैलेंज बनना कूल हो जाएगा, तब तुम वापस वो बन जाओगे. क्या मतलब है भाई, मतलब हर बार जैसे पहले ऑनलाइन स्टफ पोस्ट करना वो स्कूल कि मतलब दिन में एक स्टोरी डालना, इंस्टाग्राम यूज़ करना एंड एवरीथिंग, जब ये नया नया आया था इट वाज स्कूल, तो सब कर रहे थे. अब ऑफलाइन रहना कूल है, मतलब अगर कोई सोशल मीडिया पे नहीं है दैट इज़ कूल. भाई ये सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, दैट इज़ कूल. सो या कूल का डेफिनेशन हमेशा टाइम के साथ, वक्त के साथ चेंज होते रहेगा. सो तुम सोचो कि व्हाट इज़ कूल फॉर यू, व्हाट इज़ योर यार्ड स्टिक, व्हाट इज़ कूल, मतलब तुम कैसे डिफाइन करोगे कूल को, व्हाट इज़ योर, मतलब सिंस बचपन से. जैसे फॉर मी लाइक इमोशनल अवेयरनेस, खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाना, एकदम अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाना, इवन दो यू आर सैड, यू आर मैड, यू आर एंग्री, मतलब एकदम गुस्सा आ रहा है, एकदम क्रेजी वाला गुस्सा है, फिर भी तुम अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, उनको वर्ड्स में ला पा रहे हो, दैट इज़ कूल फॉर मी. मतलब अगर कोई इंसान होशियारी मानेगा कि मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे दुनिया क्या कर रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, it's not cool for me, it's uncool for me. Not caring what the world is thinking about you is cool, but not caring what you do to the world, मतलब तुम क्या हार्म पहुंचा रहे हो दुनिया को, उसके बारे में केयर नहीं करना, it is not cool. You need to think about your actions and their consequences at some point of time. तुम खुद ही सोचने लगोगे. सो पहले से ही सोचना चालू कर दो, बाद में बहुत रिग्रेट होने वाला है. अगर अभी से ऐसे ऐसे एक्शंस करोगे जिसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत भारी भरकम निकलेंगे, तो फिर क्या करोगे, मतलब आगे जाके रिग्रेट से भर जाओगे, एंड देन फिर यू विल हैव टू रीस्टार्ट. देन अभी स्टार्ट कर लो, तब स्टार्ट करने की जगह पे आज स्टार्ट कर लो. कल करे सो आज कर, आज करे सो वाला सिचुएशन. सो या दैट इज़ द थिंग. सो वन थिंग इज स्टॉप ब्लेमिंग पीपल, सेकेंड थिंग इज स्टॉप ट्राइंग टू फिट इन, बिल्ड योर ओन आइडेंटिटी. ज़रूरत पड़े इंस्टाग्राम छोड़ दो, डिलीट कर दो, स्नैपचैट छोड़ दो, डिलीट कर दो. जो लोग तुम्हें फिट इन करने बोल रहे हैं, जो लोग तुम्हें सर्टन बॉक्स में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करना छोड़ दो, कट ऑफ कर दो. मतलब ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव 2 लाइनर 3 लाइनर रीजन. क्योंकि अगर तुम किसी से रोज़ बात करो ना, अचानक तुम उसको गोस्ट कर दोगे, दैट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग. तो 1-2 लाइनर बोलो कि दिस इज द रीजन दैट आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई आई कैन टॉक टू यू, व्हाटएवर जो भी है तुम्हारा रीजन, एंड देन कट ऑफ कर दो. You don't need to over explain yourself. And the third thing is reach to the solution. If there is a problem, do not think about the problem. जितना तुम solution के बारे में सोचोगे, यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचना है वो सोचना है. हमें ये नहीं सोचना है, हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना कैसे है, ये जर्नी के बारे में सोचना है ना. सोल्यूशन के बारे में सोचना है, वो डेस्टिनेशन के बारे में सोचना है कि कैसे वो जर्नी कवर करेंगे. सिर्फ प्रॉब्लम सोचते रहोगे तो सिर्फ ब्लेम करते रहोगे, सॉरी, एंड you'll never reach the solution. So yeah, that is it for the video. And मैं कितना बोलती हूँ, मतलब I swear when I start talking I just don't stop. And if you like the video and if you just like me talking, whatever, just subscribe to my channel and
इस चैनल पे देर आर लॉट ऑफ एजुकेशनल कंटेंट एज वेल फॉर ACCA, फॉर स्टडीज एंड अदर थिंग्स, लर्निंग एज वेल, पर्सनल डेवलपमेंट. And I just love yapping and I love talking. So yeah, this video is for all the yappers and people who like to listen to me. Bye, toodles.